for the last two years, CSET paper has been quite difficult, and the level of difficulty of questions in the exam has been quite tough. So there were many requests from students that I should make a video on the CSET exam and how to approach it. तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि CSET को आपको कैसे सॉल्व करना है और उसके क्वेश्चंस को आपको कैसे अप्रोच करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव यू एन ओवरऑल जो क्वेश्चंस जैसे रहते हैं CSET में जो आते हैं उनका कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. मैंने एक ब्रॉड ओवरव्यू बनाया है. आई विल लाइक टू शेयर इट विद यू. सो देर आर टोटल ऑफ 80 क्वेश्चंस in the CSET paper. That is, out of 80 you have to attempt around 50 to 60 questions in order to be sure that you will clear the CSET exam. आपको सिर्फ 67 मार्क्स लेने हैं. It means 27 questions you need to attempt the correct. Roughly there are around 25 to 30 questions from comprehension and English passages, and around 50 to 55 questions are from quantitative aptitude and the logical reasoning. So friends, आपको ओवरऑल क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करने हैं, जो आपकी अप्रोच रहनी चाहिए मेरे हिसाब से, वो आप मिनिमम 50 या 55 क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट करें. बिकॉज आपको 27 क्वेश्चंस ठीक करने हैं, तभी आप 67 मार्क्स वाले जो है बेंच मार्क को कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे. तो अगर आपको 27 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए एग्जाम में, तो जरूरी है कि आप मिनिमम अमाउंट ऑफ जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो एटलीस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट 50 to 55 क्वेश्चंस. आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं इफ़ यू फाइंड इट कंफर्टेबल. तो आपको कैसे करने चाहिए, हाउ विल यू अटेम्प्ट दीज 50 to 55 क्वेश्चंस कि आपको प्रॉब्लम ना हो. बिकॉज इन लास्ट 2 years द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन दी CSET पेपर हैज़ ऑल्सो बिन वेरी टफ. सो बहुत प्रॉब्लम रहती है कुछ स्टूडेंट्स को जिनका बैकग्राउंड इज़ नॉट फ्रॉम मैथमेटिक्स नहीं है, या फिर जिन्होंने पहले कभी नहीं सॉल्व करा है रीजनिंग और क्वांट को, तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम रहती है. And because our much focus is only upon the GS and general studies subjects, so we also try to ignore these CSET subjects and these CSET quantitative aptitude and logical reasoning. So I hope that this video will make you somewhat comfortable with this exam, with this CSET paper, and how will you approach it so that you don't face any difficulty or in the exam paper. So there are 2-3 things that I will share with you. The things are that up at least try to attempt 50 questions. However, you can also attempt more number of questions if you find it comfortable, but at least try to attempt 50 questions. Second thing is that you cannot go with one size fits all approach. So there is no hard and fast rule in UPSC that you have to first attempt logical reasoning questions or you have to first attempt the quantitative aptitude questions. I would like to say that if a student is confident in quant or logical reasoning, then he should first attempt the quantitative aptitude and logical reasoning questions. Only after that he should move to the comprehension part. But if a student is not very comfortable with the quant and logical reasoning, then he should first focus upon the comprehension and passages, and after that he should move towards the quantitative aptitude questions. So the thing is that you have to only cross a fixed benchmark, that you have to only score 67 marks in the CSET paper. So try to give your maximum time to that part, to your strong area in which you are very comfortable. So अगर आप कॉम्प्रीहेंशन में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप मैक्सिमम पार्ट अपना कॉम्प्रीहेंशन में दीजिए, ताकि आपके वहाँ से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस ठीक रहें. सिमिलरली इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन क्वांटिटेटिव, देन आप ज़्यादा टाइम अपना पेपर का ज़्यादा टाइम आप क्वांटिटेटिव वाले पोर्शन को ही दीजिए, दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर करेक्ट फ्रॉम द क्वांटिटेटिव पोर्शन. The other things are that while solving reasoning questions, then I will give you some specific tips how to solve the reasoning questions, quant questions, and comprehension questions. So while solving reasoning questions, don't go for complex reasoning. There are different type of reasoning questions in the exam. Sometimes a big statement is given. After that 4 to 5 questions will follow depending upon that question statement. So, and sometimes there is only one question following a simple reasoning. So try to solve those simple questions that are only having simple statements, and only 1 or 2 questions follow. Because
the level of difficulty in simple reasoning questions will be very less, and you will need very less amount of time in solving those questions. It will further increase your confidence if you get them right. Because if you start solving the complex reasoning questions and if it doesn't go your way, तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम लग जाता है उसमें, और तो उसके बाद अगर वो फिर भी सॉल्व नहीं होता है तो 5-6 मिनट लगाने के बाद भी वो क्वेश्चंस आपके सॉल्व नहीं होते हैं, एंड आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस आपके ऊपर एक बर्डन जो है, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और आपके ऊपर एक प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज टाइम इज ऑल्सो टेकिंग अवे. तो फॉर रीजनिंग क्वेश्चंस ट्राई टू सॉल्व दोज सिंपल क्वेश्चंस विच आर ओनली 1 स्टेटमेंट और 2 स्टेटमेंट. बहुत छोटी जिनकी स्टेटमेंट होती है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ओनली 1 और 2 क्वेश्चंस फॉलो दो स्टेटमेंट्स. वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, और आप जैसे ही आप उनको सॉल्व करेंगे, आपके ठीक क्वेश्चंस होंगे, तो ये आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा और आप दूसरे क्वेश्चंस भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे. क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस के लिए आई वुड लाइक टू से देन डोंट गो फॉर वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज, डोंट ट्राई टू लर्न देम और क्रैम देम, बिकॉज many coaching institutes or many teachers say that they will give you a list of complex formulas from different arithmetic topics, and they will say that just cram them or just revise, just learn them. So क्योंकि आपने पहले अगर क्वांट नहीं करा है तो उस टाइम पे आप सिर्फ उन फॉर्मूलाज को रट के या उनको याद करके आप वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे. Secondly, you have to remember a lot of things from general studies portion, so it will be very difficult for you to learn and to remember those complex formulas of mathematics alongside with the general studies. तो आप उन फॉर्मूलाज, बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज के पीछे मत जाइए, उनको क्रैम करने का कोई फायदा नहीं है. बल्कि क्वांट के क्वेश्चंस को आप एक लॉजिकल तरीके से ही सॉल्व करेंगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. सो ट्राई टू सॉल्व द क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस इन ए लॉजिकल वे. जैसे कि लेट मी टेक एन एग्जांपल फ्रॉम 2018 पेपर मेरे पास अभी है, और मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूँ. A shopkeeper sells an article at ₹40 and gets X% profit. However, when he sells it at ₹20, he faces same percentage of loss. What is the original cost of the article? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, एंड the selling price of an article is ₹40 and he gets some X% profit. But when he sells it at ₹20, he gets the same amount of or the same percentage of loss. So the cost price must be somewhere between these ₹20 and ₹40, because these are the two selling price. At one selling price he is incurring a loss, and at one selling price he is incurring a profit. So, and the profit is same. It means the cost price must be somewhat between these two selling prices, that is ₹20 and ₹40. Selling price must be between these two prices, and वो इस तरह से होना चाहिए that कि वो इस तरह से बीच में हो कि उसको उतना ही प्रॉफिट और उतना ही लॉस हो. तो जैसे ऑप्शंस आर ₹10, ₹20, ₹30 and ₹40. So obviously ₹30 will be the answer, because ₹30 is that amount which is between the ₹20 and ₹40, और वहां से उसको ₹10 का ही फायदा और ₹10 का ही नुकसान हो रहा है. सो what I want to say from this example is that कि आप जो हमारे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं और जो क्वांट के क्वेश्चंस होते हैं, तो आप क्वांट के क्वेश्चंस को बिना फॉर्मूले के भी अटेम्प्ट कर सकते हैं. वहाँ पे आपको थोड़ी सी रीजनिंग लगानी पड़ेगी. तो कोशिश करिए कि आपको फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा याद ना करने पड़े और आप ऐसे लॉजिकल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. आप जल्दी से सॉल्व भी कर पाएंगे. ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक और बता देता हूँ इसी सेट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए. द सेकेंड थिंग इज, अगर क्वांट के क्वेश्चंस आते हैं, जनरली अर्थमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और उसमें आपको सॉल्व करने में, डायरेक्ट सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स होती हैं या आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है, तो ट्राई टू गो इन एन इनवर्स वे कि आप ऑप्शंस को उठाइए और ऑप्शंस को फिट करके देखिए दैट विच ऑप्शन इज फुलफिलिंग ऑल दी कंडीशंस. जैसे हमारे को एग्जाम में कंडीशंस दी होती हैं दैट देयर इज सम नंबर, अगर हम उसमें ये करते हैं तो ये होता है, उसमें ये करते हैं तो ये होता है. लाइक देयर इज ए क्वेश्चन, एज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि इतनी एज थी 5 साल पहले, हम इतना कर देते हैं, 5 साल बाद उसकी एज इतने टाइम्स हो जाती है, पहले इतनी थी अब इतनी हो जाती है. ऐसी कुछ कंडीशंस आर गिवन इन द क्वेश्चन. सो देयर आर 4 ऑप्शंस आर गिवन इन द आंसर. सो अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, इक्वेशन बहुत बड़ी बनेगी, आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी और आपने पहले नहीं करा है, देन व्हाट यू कैन डू इज स्टार्ट विद द ऑप्शंस. You take first option, then try to fit it into the conditions of the questions. If it satisfy all the conditions, it means it is the answer. Otherwise, then go to fourth option.
आप पहले फर्स्ट ऑप्शन पे जाइए, फिर फोर्थ पे जाइए, फिर सेकंड पे जाइए, फिर थर्ड पे जाइए। तो या आप पहले बी और सी को भी ट्राई कर सकते हैं। सो इट इज ओनली ट्राई दी ऑप्शंस कि विच ऑप्शन इज फुलफिलिंग ऑल दी कंडीशंस, और आप उनको फिट करके देख लीजिए। तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा और आप ऑप्शंस को कर करके जल्दी कर पाएंगे। तो दिस इज द रिवर्स वे। ये मैं उन कैंडिडेट्स के लिए बोल रहा हूँ जो फॉर्मूलाज में या फिर कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ये दिस इज फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स। The third thing is if you find any questions very difficult, जिसको आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये इसमें क्या पूछा गया है और मेरे को इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है, तो just try to leave it, उसको छोड़ दीजिए। don't waste your time in that question because you have to only score 67 marks, that is only 27 questions you have to attempt correctly. It means you don't have to attempt each and every question. The questions that you find tough, just leave them, don't waste your time in those questions. Only try to give your maximum time to those questions in which you find yourself comfortable. It means the accuracy is more important because आपको यहाँ you have to race against yourself only. Don't have to race against any other candidate. आपको सिर्फ 67 मार्क्स लेने हैं, आपको 27 क्वेश्चंस ठीक करने हैं। तो you don't try to solve each and every question। जो टफ है उसको आप छोड़ दीजिए और अपना टाइम बचाइए। उसके अलावा जो है आप जब कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन करेंगे तो आई वुड लाइक टू से कि यू जस्ट गो फॉर दी बिगर पैसेजेस फर्स्ट, बिकॉज इन लॉजिकल रीजनिंग गो फॉर दी स्मॉलर रीजनिंग स्टेटमेंट्स। स्मॉलर जो छोटे रहते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस उनके लिए जाइए, बड़ी रीजनिंग पे मत जाइए। लेकिन जब आप कॉम्प्रीहेंशन करेंगे तो आई वुड लाइक टू एडवाइस कि गो फॉर दी बिगर पैसेज, क्योंकि उसमें क्या रहता है कि आप एक बहुत बड़ा पैसेज पढ़ते हैं, उसमें टाइम लगता है, उसके बाद सिंपल एक ही क्वेश्चन होता है। ऐसा पिछले दो साल से 2-3 साल से ऐसा ही पूछा जा रहा है, तो उसमें आपको टाइम ज्यादा लगता है लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने क्वेश्चन आपको कम मिलते हैं। तो बड़े पैसेज के लिए जाइए क्योंकि आपको पढ़ने में उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन उसके बेसिस पे आप 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा कॉम्प्रीहेंशन में एक ट्रिक है दैट फर्स्ट गो फॉर द क्वेश्चन। आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इफ यू फील दैट देयर आर डायरेक्ट क्वेश्चंस, तो उन्हीं कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस को ट्राई टू सॉल्व दोज कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस फर्स्ट इन विच यू फाइंड द डायरेक्ट क्वेश्चंस। There are some questions like you have to find the inference, what should be the title, what should be the message from this passage। ऐसे क्वेश्चंस में always there is subjectivity involved, तो आपको नहीं पता होता है कि क्या आंसर होगा, तो आपको गैस करना पड़ता है। बट in some questions are very direct from the passage, तो आपको लगता है कि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं तो आप पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस वाले पैसेजेस को करिए। And also attempt those bigger passages which have at least 5 to 6 questions based on that passage। अब ये होने के बाद फिर आप जो है छोटे पैसेज पे को सॉल्व करने की कोशिश करिए। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट एडवाइस इज दैट डू नॉट पैनिक इन द एग्जाम, बिकॉज सीसेट एक ऐसा पेपर है जहाँ पे आपको जो आप पूरा टाइम आप जीएस की तैयारी करने में लगाते हैं, लेकिन सेकंड पेपर आपका सीसेट का होता है, आपने बहुत अच्छे से तैयारी उसकी नहीं करी होती है और समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं रहते हैं उस सीसेट के पेपर्स में। तो अगर आप वहाँ पे पैनिक करेंगे तो क्या होता है, बिकॉज यू आर सॉल्विंग सम रीजनिंग पार्ट, तो आपको बहुत सारे परमुटेशन कम्बिनेशन लगाने पड़ते हैं, तो आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट होता है। जैसे आप एक रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं, उसमें आपको 5 या 6 मिनट लग जाती हैं, उसके बावजूद भी आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बहुत पैनिक कर जाते हैं, प्रेशर इंक्रीज कर जाता है और आप फिर उसके बाद वो लॉजिकल रीजनिंग नहीं ढूंढ पाते हैं या फिर वो आंसर नहीं निकाल पाते हैं जो कि आप एक काम एंड कंपोज माइंड से निकाल पाएंगे। तो ये एक मैं कहूँगा कि दोनों तरीके से आपके ऊपर बर्डन इंक्रीज करता है और आपको आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती है उससे। सो फर्स्ट थिंग इज डू नॉट पैनिक, फर्स्ट एंड लास्ट थिंग इज डू नॉट पैनिक इन द एग्जाम, बिकॉज इट डिक्रीजेज योर एफिशिएंसी एंड वट एवर क्वेश्चंस यू कैन अटेम्प्ट राइट you will attempt them wrong, so it will hurt you more. So try to maintain your attention and the calm and composed mind during the exam, so it will help you. So friends, यही है मतलब सीसेट के लिए आप जो मेरी जो एडवाइस थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था दैट आई शुड मेक 1 वीडियो फॉर सीसेट, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था दैट आई शुड बी बाइलिंगुअल इन माय वीडियोस, क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम से स्टूडेंट्स भी रहते हैं और इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट्स भी रहते हैं। सो आई हैव ट्राइड दीज थिंग्स कि मैं बाइलिंगुअल भी रहूं ताकि आपको इससे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, हिंदी मीडियम वालों को भी और इंग्लिश मीडियम वालों को भी।
और जो सीसेट से रिलेटेड आपके डाउट्स थे वो मैंने यहाँ पर कोशिश करी है कि मैं आपके सारे डाउट्स को दूर कर सकूँ. सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड.